Dear students, I am Dr. Asen Mandal. I will guide and help you in biology, in botany and zoology. I am a specialist for zoology, but also guide you in botany. Okay? So just now, why you need biology? What is biology? And why you would like to make your career and lifespan to in biology? Biology nowadays very much important points to make the career of all the students all over in India. Not only in all over in India, but all over the world. Because nowadays diseases are going to be spread by day and day. That's why we need doctors. That's why we go through the biology. Okay? Now, we are going to discuss regarding the topic of the biology in the standard 11. Syllabus is mentioned on the top of your whiteboard. Just now you can see. So just now, first of all, dear students, you see unit first, the diversity of the living world. Diversity means differentiation. Diversity means differentiation. Because living means going to happen plants, and both plants have also life, animals have also life, but you must have to be bifurcate why plants is necessary for the animals and animals are necessary for the plants. Both are interrelationship in between each other, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है. Okay, next point, the biological classification. Classification means modification. Modification means separation. Okay. So biological classification, how many biological classification is going to be happen? Biological classification means plants and animals both. We have to be bifurcate and division surrounding plants and animals. And plant kingdom, there are various plants in biology. More than 90% living words are communicate in the plant living beings. As far as animal beings, the number of animals are very less than plants. Animals have less than plants. Plant is much more quantity, quality, and number of the plants. There are so many different types of plants. Some plants are very much useful to me. For example, medicinal plant like tulsi, like aloe vera. There are so many plants are useful for our daily life as a medicinal value, food value, and such as consistence of other essential products. Next, a structural organization in plants. So we just now we are going to discuss regarding the topic of the structural organizing plants and animals. Different plants have different types of structures, and different animals have different types of body structures. And structures and functions are completely different to each other. Plants have own structure, own function, and animals have own structure and own function. Now come to the point. Morphology of flowering plant. Morphology means physical appearance. How it looks like to see, physical, how we can view this plant, the structure, this plant, how it go to be modified. Okay, all the plants have own physical consistence and appearance. Like a mango tree have own consistence, people tree have own consistence, and marigold plant also the own consistence. Each and every plants have own consistence and physical appearance. Next, anatomy. Anatomy means here physical. Physical means outside. Outside. Shape and size.
shape and size. Anatomy means internal structures. Internal in our body there are so many organs. They have different internal structures like liver, kidney, heart, lungs, etc. etc. All the organs in our body have different structure and different functions according to their necessity of the body. Like same systematic position, morphology is completely outside physical appearance. How we can see, how जिसे हम लोग आंख से देख सकते हैं. Physical, suppose that you look at me, this is my physical appearance. But when you go inside the anatomy internal structure, my heart, lungs, kidney, liver, pancreas, spleen, etc., etc. This is called the anatomy and a structural organization in animals. All the animals have different types of structures. They are completely varied to each other. So, all animals have to go through in the animal kingdom part by part and class by class and division by division. Next, structures and functions. Now we have to go through about this. Our body is completely composed with the help of the minute pores of the cells, which one we cannot see with the help of our naked eyes. जिसे बच्चों हम लोग अपने आंख से अपने सेल को देख नहीं सकते. Then if you'd like to try to see the cell of our body, then we need a magnifying glass. Magnifying glass means microscope. माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं. तो उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन वी विल डिस्कस. उसमें से 4 में से 3 आप लोगों को स्टडी पीरियड में देखने को मिलेगा और एक जब आप प्रोफेशन में आएंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्पेशली यूज फॉर द बिग हॉस्पिटल्स एंड द क्लिनिक्स. वो आप प्रोफेशन में जब आएंगे तब देखेंगे आप. तो मैं आपको बता ही दूं, आपको ये सेल को देखने के लिए मैंने कितने प्रकार का आपको बताया माइक्रोस्कोप? 4 प्रकार का. एक होता है मोनोकुलर. मोनो मीन्स होता है सिंगल, एक सिंगल, जिसको हम लोग एक आंख से देखते हैं उसको बोलते हैं मोनोकुलर. ओके. और दूसरा होता है बाइनोकुलर. इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप. इसको बोलते हैं बाइनोकुलर. बाई मीन्स टू, कुलर मीन्स लेंस, जिसको हम लोग दोनों आंख से देख सकते हैं. मोनोकुलर, मोनो मीन्स एक, लेंस, कुलर मीन्स लेंस. इन एक आंख से देख सकते हैं उसको बोलते हैं मोनोकुलर. और बाइनोकुलर, बाय मीन्स टू, कुलर मीन्स लेंस, जिसको दोनों आंख से हम क्लियर देख सकते हैं. और थर्ड जो है ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिंग माइक्रोस्कोप. स्पेशली यूज फॉर विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटर्नल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चलता है. और स्लाइड लाइट अगर देखना है तो इसी माइक्रोस्कोप को हम लोग यूज करते हैं. स्लाइड वो ग्लास में लगाते हैं हम लोग और उसको फोकस डालते हैं माइक्रोस्कोप का, तो ये बड़ा से बड़ा दिखता है. सबका आई पावर अलग होता है और आपका आई का पावर अलग है, मेरे आई का पावर अलग और सभी बच्चे का आई का पावर अलग है. अपने पावर के हिसाब से माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करके आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में. ये प्रोजेक्टिंग माइक्रोस्कोप. और फोर्थ है हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Especially used for the big hospitals and clinics for the acknowledgement of the pathology. Disease के बारे में इसको डिस्कवर करता है. ये स्पेशली यूज फॉर द बिग हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा बॉडी जो है बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है. बायोमोलिक्यूल्स क्या? बहुत सारे फैक्टर्स हैं
उस फैक्टर्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे के सारे एलिमेंट्स मिलकर बना होता है। और ये चैप्टर आपको बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स जो है आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से आपको सीखना पड़ेगा। इसमें केमिकल फॉर्मूला भी है, केमिकल बाउंडिंग भी है। और जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, देखते हैं कि हाइड्रोजन, वाटर या जो भी है, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड या जितने भी प्रकार के केमिकल बाउंडिंग्स होते हैं, सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी का बाउंडिंग होता है। और उसका बाउंडिंग करने के लिए उसको अलग से आपको केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे। तो चलिए आइए इसमें जेनेटिक्स में दो चैप्टर होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, वो आपके 11th में नहीं है, 12th में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ वेरिएशन। ये दोनों चैप्टर इस चैप्टर से रिलेटेड है। इसको बढ़िया से समझिएगा, तभी आप 12th वाले जेनेटिक्स समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक होता है प्लांट जेनेटिक्स, एक होता है इन ह्यूमन जेनेटिक्स। तो सबसे पहले इसमें है सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है वह क्या कहते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट प्रोफेज में है मेटाफेज, सेकेंड मेटाफेज। तो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, डाइकाइनेसिस। ये पांच प्रकार की ये जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। और जब ये प्रोफेज जब सेकेंड हो जाता है तो ये ह्यूमन बींग्स को इंडिकेट करता है। ह्यूमन बींग का भी 4 स्टेज होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी, प्लांट का मतलब आप समझिए, फिजियोलॉजी का मतलब फिजिक मीन्स होता है स्ट्रक्चर, किसी प्लांट के स्ट्रक्चर। और लोगस मीन्स होता है, फिजियो मीन्स होता है स्ट्रक्चर, और लोगस मीन्स होता है स्टडी। किसी भी प्लांट्स का स्टडी जब हम करते हैं, फिजिकल स्टडी करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को करते हैं, उसकी बनावट को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ओके, उसी तरह से ह्यूमन बींग्स में है या एनिमल बींग्स में उसके फिजिकल अपीयरेंस को, फिजिकल स्ट्रक्चर को, फिजिकल बनावट को जब हम उसको स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजिक्स में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लोगस में स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आउटसाइड, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, कान में, एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल अपीयरेंस। नाउ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बच्चों आप 10th में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस प्रिपेयरिंग। तो क्या प्रिपेयरिंग, लाइट से क्या प्रिपेयरिंग होगा? फूड, नॉट फॉर एनिमल बींग बट फॉर प्लांट बींग्स। ओके, प्लांट का कोई किचन नहीं होता है, प्लांट को कुकर गैस नहीं जलाता है, लेकिन वो अपने लीफ से ही वो फूड को प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है प्रिपरेशन। द प्रिपरेशन ऑफ लाइट इज इक्वल टू फूड। समझ में आ रही है? तो कोई भी प्लांट्स जो है, नॉट ऑल द प्लांट्स, ओनली ग्रीनरी प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देयर आर 3 factors to prepare the food. Especially it occurs in greenery plants, not for all the plants. Plants are also in saprophytic plant, autotrophic plant. Autotrophic plant can prepare their own food. Which one the green plant can trap the sunlight, उसको absorb कर लेता है, खींच लेता है, लेकिन saprophytic में ये खींच नहीं सकता। Saprophytic plants completely interdependent on bacteria, virus, other insects. Next, respiration in plants. बच्चों हम लोग सांस लेते हैं तो प्लांट भी सांस लेता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उसी तरह से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दोनों का अनुन्यास है, इंटर रिलेशनशिप इन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो वी कैन सपोज, आप मान लो कि अगर प्लांट्स नहीं हो दुनिया में तो क्या होगा?
इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर सपोज प्लांट पूरे वर्ल्ड में खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? नहीं, रिजल्ट इसका यही होगा कि जितने भी एनिमल बींग्स हैं दे विल बी डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली because they need oxygen. They from whence they will bring the oxygen for survival their life further ago. तो आगे जीवन को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाया जाएगा? आपको अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलता है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलता है, उसकी कितनी महंगी है? वो स्पेशली फॉर द इमरजेंसी पर्पजेज यूज ऑफ द ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल स्पेशली, बट फॉर कॉमनली फॉर यूज द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ इन डेली बेसिस we need natural oxygen. ओके, तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को रेस्पिरेशन जो है, प्लांट्स जो है, प्लांट क्या करता है? प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करता है और O2 रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन इज यूज फॉर सर्वाइवल देयर लाइफ, स्पेशली फॉर एनिमल बींग्स। ठीक इसी तरह से सेम कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर सर्वाइवल ऑफ दियर डेली लाइफ। ये प्लांट्स डेली लाइफ के लिए, प्लांट्स सर्वाइवल के लिए जरूरी है CO2। समझ में आई बच्चों? अब चले आइए नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक चीज आप जान लीजिए, all the animal beings have definite point of time for their growth and development. एक निश्चित समय तक किसी भी एनिमल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है? लेकिन प्लांट्स में अनलिमिटेड होता है, टिल लाइफ दे स्टार्ट टू ग्रोथ एंड ग्रो अप। हम लोग कुछ समय 25-30 साल के बाद जो है हम लोग की हाइट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग का जब ग्रोथ जब डेवलप हो स्टॉप हो जाएगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? बॉडी फैलेगा। जिससे देखोगे किसी आदमी को ये जो इसको जो वेस्ट बोन है इसको बोलते हैं गर्थ। इसी गर्थ को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब हाइट, डेवलपमेंट मीन्स गर्थ, बॉडी जो फैलता है। Any problem? नेक्स्ट पॉइंट, उसी तरह से प्लांट ग्रोथ जो है, प्लांट का ग्रोथ मैंने बताया टिल लाइफ होता है, जब तक जिंदा रहता है तब तक बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो अमरवेल, जिसको कसकुटा भी बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, ये टिल लाइफ वो अपने पर नहीं रहता है, वो किसी दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है। जो प्लांट ट्री हो, पीपल ट्री हो, उसमें लीफ नहीं होता है, केवल लत्ती होता है, क्रीपर्स होता है, और क्रीपर इस तरह से जकड़ लेता है जैसे सांप किसी को जकड़ लिया, वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है? तो ये पैरासाइटिक प्लांट्स है और इसका यूज जो है हमारी लाइफ में बहुत है। आप देखा होगा अगर किसी को अगर व्हाइट पैच, उजला उजला दाग बॉडी पर हो जाता है, ओके, और उसमें ये मेडिसिन का काम करता है, ये कसकूटा, जिसको बोलते हैं कसकूटा, ये पैरासाइटिक प्लांट, एक मेडिसिनल वैल्यू भी हो गया हमारे लाइफ में। और उसी तरह से एनिमल्स में भी पैरासाइट्स होता है, जिस तरह से ये पैरासाइट दूसरे प्लांट पर होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप नाम सुना होगा अमीबा, देखा भी होगा, लेकिन है क्या कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ और डेवलप के बारे में। ग्रोथ का मतलब समझ गया, ग्रोथ मीन्स हाइट और डेवलप मीन्स गर्थ। जैसे देखो कोई भी प्लांट अगर ग्रोथ करता है तो उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी मोटाई भी बढ़ती है, उसका ग्रोथ है डेवलपमेंट एक साथ होता है। लेकिन एनिमल बींग्स में क्या होता है, ग्रोथ पहले हो जाता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है? जैसे देखो किसी का बाल झड़ गया,
ये डेवलपमेंट है। और कोई जो है मोटा हो जाता है, डेवलपमेंट है। कोई मोटा से दुबला पतला हो जाता है, दैट इज डेवलपमेंट। तो नाउ कम टू द पॉइंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स ह्यूमन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सभी का वेट अलग अलग होता है, सभी का हाइट अलग अलग होता है, सभी की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो फिजियो मीन्स फिजिकल, इसको बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल, फिजिकल मीन्स फिजिक, फिजिक। तो ये किसी का फिजिक कहता है ना, किसी का फिजिक कैसा है, ये शरीर का बनावट कैसा है, ये शरीर का। फिर लॉगस मीन्स स्टडी, मैंने बताया पहले आपको, ये स्टडी लॉगस मीन्स स्टडी। तो आई मीन टू स्टेट दैट ह्यूमन फिजिकल और फिजिक स्टडीज, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स हियर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें दो क्वेश्चन है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, जो हम सांस लेते हैं इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, वो दिखता है, फिजिकल प्रोसेस। जब फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करेंगे वो ऑटोमेटिकली दिखता है। और एक दूसरा प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ये दिखता नहीं है, फील होता है। तो यानी दैट मीन्स यू कैन से फॉर साइट एंड फीलिंग देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। Whatever we breathe it out, for example, take deep breath. That means our stomach, this is called the stomach or abdominal part go to the inside and our chest go outside, comes outside. Abdominal part, when we take deep breath, this is the chest part comes outside because we take deep breath. Our lungs is completely vacuum the oxygen in large space. That's why our abdomen go inside or our chest comes outside. So I mean to state this is the physical process. This is the physical, breathing is a physical process, and whatever we take the exchange of gases, that is called chemical process. With the help, suppose that you take breathe, you take breathe and keep it stop. सांस को बंद रखो for how long? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes maximum. But 3 minutes is too much heavy. But who is the diver? जो पानी में गोता लगाता है वो 5-7 मिनट तक रखता है, लेकिन but it depends on experience. But an adult people take 12 to 16 times in a minute. This is the ratio. But a very newly born baby, young ones, that is called neonate, they take 70 to 72 times. But once who is a newly ones, 120 times they take breathe. वो सांस कैसे लेगा? Because they need energy. With the help of the breathing process, they get energy. When they start to grow up slowly, the ratio of 120 starts to come down and just go to be stuck on 70 to 72 times. Once they go to be stand it up, वो बच्चा जो 70 से 72 बार सांस लेता है. But once who has taken born during the period of 90 days, these neonate, that is called neonate in biomedical science, or newly born baby, they take breathe 120 times per minute. In a 1 second, they take 2 times breathe. In a 1 second, is a duration limit. Now come to the point of, this is called exchange of gases, that is called chemical process. Chemical process. With the help of chemical process, energy formed. Energy formed. When energy formed, we cannot see, but we can feel. Next point. Body fluid and circulation. Body fluid. देखो बच्चों, whatever we take inside our body,
दे प्रिपेयर द टॉक्सिन्स, गुड पर्पजेज और बैड पर्पजेज। अब एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक को कहा जाता है, स्टमक इज कॉमनली नोन एज मदर ऑफ 78 डिजीज स्पेशली अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स। आप पानी पियोगे पेट में जाएगा, दवा खाओगे पेट में जाएगा, रोटी खाओगे पेट में जाएगा, चावल खाओगे पेट में, कुछ भी खाओगे, दारू भी पियोगे तो वो पेट में जाएगा। तो इसलिए स्टमक को कहा जाता है मदर ऑफ 78 डिजीज स्पेशली अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। समझ में आ गई? तो इसी से ये बॉडी फ्लूइड बनता है। तो ये फ्लूइड दो तरह का बनता है, एक ऑक्सीजनेटेड, एक है डीऑक्सीजनेटेड। मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ कम टू द पॉइंट। बॉडी फ्लूइड दो तरह का बनता है, ये बॉडी फ्लूइड दो तरह का बनता है, एक है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड फ्लूइड जो होता है इसको कैसे पहचानोगे? एक दूसरा है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड फ्लूइड। Now you have to recognize which one is oxygenated, which one is deoxygenated. Come to the point. Deoxygenated fluid, ये especially looks like yellow or pale in color. This is called deoxygenated ब्लड। ये देखने में पेल और येलो लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड मींस विदाउट ऑक्सीजन। ये हो गया आपका, जस्ट नाउ नोटिंग डाउन योर व्हाइट बोर्ड, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, और ये विद ऑक्सीजन, विद O2। विदाउट ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन इसमें होगा ही नहीं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और ये ज्यादा पॉइजनस होगा। ये क्या होगा? पॉइजनस होगा, पॉइजनस होगा। और ये जो है ऑक्सीजनेटेड, ये यूजफुल होगा, यूजफुल होगा, और ये हमारे बॉडी में सर्कुलेशन करेगा। सर्कुलेशन मीन्स परिसंचरण, हिंदी में इसको बोलते हैं, यानी दौड़ना, हमारे बॉडी में ये दौड़ता है। और ये जो है जब सर्कुलेशन होता है तो हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड से होता है, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड, ये राइट हैंड साइड से होता है, राइट हैंड साइड से। और ये जो है हमारे बॉडी में 3 बार फिल्टर होता है और चौथे बार में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लूइड प्रिपेयर होता है, व्हिच वन स्टार्ट टू सर्कुलेट फ्रॉम लेफ्ट लंग टू राइट लंग एंड देन होल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बच्चों मैंने पहले बताया जो भी फूड आइटम्स, लिक्विड, सॉलिड जो भी हम लोग लेंगे वो हमारे स्टमक में जाएगा। इसका एक फ्लूइड बनेगा, दो प्रकार का फ्लूइड बनेगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड हमारे लिए गुड पर्पजेज है और डीऑक्सीजनेटेड अगर वो फिल्टर नहीं हुआ तो हमारे लिए बैड पर्पज, जो हम लोगों को हानि करता है, वो एक टॉक्सिन हो जाता है, वो एक टॉक्सिन हो जाता है, पॉइजन। नेक्स्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो हम, अब एक बात मैं बताता हूं बच्चों, जो फूड लेगा वो बाथरूम में जाएगा, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, तो वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो कुछ लिमिटेड पीरियड के बाद वो हमारे बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उस टॉक्सिन को किसी न किसी रूप में वी मस्ट हैव टू कीप आउट फ्रॉम द बॉडी। अदरवाइज अगर आप कहो कि अगर उसको कीप आउट नहीं करेंगे, दे विल कंटामिनेट योर नर्वस सिस्टम। सबसे पहले वो आपके नर्वस सिस्टम को कंटामिनेट करेगा और नर्वस सिस्टम जब कंटामिनेट हो जाएगा
तो आपका बॉडी फंक्शनल नहीं हो जाएगा। अब धीरे धीरे वो आपके बॉडी को डीएक्टिवेट कर देगा और डीएक्टिवेट होने के बाद वो जो है मोशन लेस हो जाएगा, एनर्जी लेस हो जाएगा, इन द लॉन्ग रन दे गो टू बी डाई। ओके, तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट वे में, हम लोग का स्वेटिंग होता है गर्मी में, तो अब देखोगे हम लोग फैन एयर कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो बॉडी के कंप्रेशन को लो करने के लिए, जब ये लो हो जाता है तो आप न्यूट्रल फील करते हो, बेटर फील करते हो इन समर सीजन। फिर विंटर सीजन में when the body compression go to be low but we need high according to such circumstances of the situation of the nature। जिससे देखो गर्मी के मौसम में अगर पानी नीचे से निकालोगे तो वो ठंडा निकलेगा, वही पानी जाड़े के मौसम में वो गर्म निकलता है। तो बॉडी जिस तरह से चेंज करता है, नेचर भी उसी तरह से चेंज करता है। और हमें ठंडे में वुलन क्लॉथ वी कवर आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ वुलन क्लॉथ टू कीप द बॉडी वार्म। उसी तरह से समर सीजन में वी पुट ऑन लाइट क्लॉथ टू कीप द एयर इनसाइड आवर बॉडी। तो उसी तरह से ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वह दो प्रकार का बनता है, दो प्रकार से ये बनता है। एक जो है फंक्शनल, कभी वो एक्सक्रेट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के नोज से आएगा, माउथ से आएगा, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है यूरिनल प्रोसेस से आएगा, किसी न किसी प्रकार से वो हमारे बॉडी का आउट होना जरूरी है। अगर बॉडी से आउट नहीं करेंगे तो पहले क्या होगा बेटा, वो सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम को कंटामिनेट कर, तंत्रिका तंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। हमारा जो ये बॉडी जो है ये नर्वस सिस्टम में चलते हैं, ये नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट और रेसिस्ट करता है हमारे बॉडी को फंक्शनल बनने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेट, कीप अवे from the body time to time, time to time। जब बॉडी को जरूरत पड़े कि ये हमारे यूज का ये प्रोडक्ट नहीं है तो उसको हमारा बॉडी जो है वो बॉडी से कीप अवे फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से दूर करने के लिए हमें सिग्नल देता है, जिससे यूरिन लगता है, यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, गो टू बी यूरिनल। तो उसी तरह से ये एलिमिनेशन जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट को ये कीप अवे किसको करता है, टॉक्सिन को। ये टॉक्सिन दो प्रकार का होगा, एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा, लिक्विड और एक जो है गैसियस फॉर्म होगा, गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में तीन तरह का टॉक्सिन बनेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन एंड मोमेंट। बच्चों हम लोग आते हैं, अगर हाथ उठाते हैं तो ये भी लोकोमोशन है। अगर ये हमारा जो है मैंडिबल जो है, ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है, ये स्टेशनरी है, ये मूवेबल नहीं है, और ये मैंडिबल जो है स्टेशनरी है, जिसके चलते हम लोग का माउथ ऊपर नीचे होता है। तो ये लोकोमोशन जो है स्पेशली इसमें बोन्स का होता है, कार्टिलेज का होता है, कार्टिलेज, रीब का होता है, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू है, ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज। तो बच्चों इसमें देखिए लोकोमोशन, हमारे बॉडी में बहुत सारा लोकोमोशन होता है। अब देखते हो कि फिजिकल अपीयरेंस, जब आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज जो करते हो तो बॉडी का मूवमेंट होना जो बहुत, आप देखा होगा सर्कस में बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स जो अपनी बॉडी को रबड़ की तरह मरोड़ देता है, वैसे अगर मरोड़ोगे तो आप गो टू बी हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये लोकोमोशन जो है, अभी आपने देखा होगा कि 21 जून को एक्सरसाइज, यानी उसको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज डे उसको रखा गया है, वो मोदी साहब जो बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में लोकोमोशन होना बहुत जरूरी है। जो एथलीट्स होते हैं देखोगे उसको बीमार कम होगा, उसके कमर में दर्द कम होगा, घुटने में, जॉइंट्स में पेन कम होगा, क्योंकि अपने बॉडी को मूवमेंट करता है। हम लोग यहाँ से जाते हैं ऑफिस से घर, या बस कोई एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं। इससे क्या होगा कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे,
मैं यहां मिटा देता हूं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बोन की, जिस तरह हमें सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, उसी तरह से बोन को सर्वाइवल के लिए भी उनको फूड चाहिए। उस फूड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड जो है, आप देखे होंगे कभी कभी उंगली तोड़ते कट कट हुआ, उसी तरह से कट कट। ये क्यों होता है? ये कट कट होने का रीजन क्या है? वहां पर जो आपका ज्वाइंट है, किसी फेविकॉल से ज्वाइंट नहीं है, वह बॉन्ड्स का नेचर एक दूसरे के ग्रुप में जाके बैठ जाता है। जब वो डिसलोकेट हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बंद होगा तो साइनोवियल फ्लूइड जो है बनना बंद हो जाएगा। जब ये साइनोवियल फ्लूइड बनना बंद हो जाएगा तो ज्वाइंट्स में पेन में अगर बैठेंगे तो उठेंगे, जब देखेंगे आपके बूढ़े लोग जो होते हैं बैठते हैं तो कट से उठता है, उठता है तो कट से उठता है। इसका रीजन क्या है? कि उसका बॉडी जो है फंक्शनलेस होते जा रहा है। अब डॉक्टर के पास जाएगा तो कैल्शियम देगा। कैल्शियम इज नॉट अ सफिशिएंट मेडिसिन फॉर द साइनोवियल फ्लूइड, बट उसके लिए क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए, व्यायाम चाहिए। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दोनों। तो हमारे ये लोकोमोशन को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर, नहीं ज्यादा टाइम है, 24 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 24 आवर, हाफ एन आवर यू कैन स्क्वीज, आप बचा सकते हो। तो इस हाफ एन आवर में जो है ये साइनोवियल फ्लूइड आपके बोन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसमें आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी जो बीमारियां हैं ये कम होने की चांस है। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर आर्थराइटिस, वो आप देखते होंगे कि आजकल जो है वो व्हील चेयर हो गया, या क्या कहते हैं वॉकर हो गया, बैसाखी हो गया, स्ट्रेचर हो गया, बहुत सारे ड्यू टू द साइनोवियल फ्लूइड। हमारे बॉडी में जितना भी मोमेंट्स है, जितना भी ज्वाइंट्स है, ऑल द ज्वाइंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट हैव टू गिव द मोमेंट, तो अदरवाइज इट स्टार्ट्स टू बी लॉक, then you have to be hospitalized, then you take the old life medicine. So this is the locomotion. Loco means energy consuming process. आप दौड़िए, देखिए वो भी लोकोमोशन है, उठिए वो भी लोकोमोशन है, बैठिए वो भी लोकोमोशन है, एक्सरसाइज करिए वो भी लोकोमोशन है। जितने भी सारी चीजें करेंगे, दीज आर द लोकोमोशन, दीज आर द एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसका मोमेंट जो है फ्री होगा। जब मोमेंट फ्री होगा यू विल बी डिजीज फ्री। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सबसे वाइटल पॉइंट, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। न्यूरल कंट्रोल का मतलब होता है बच्चों कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल में है या नहीं। अगर कंट्रोल में है तो केमिकल रिएक्शन करता है या नहीं करता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। पहले तो ये जो है ये वाइटल मशीन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये न्यूरल जो है हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, रेसिस्ट करता है, ये। तो न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल सिस्टम स्पेशली अकर्स इन ब्रेन हैव 3 पार्ट्स, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। ये आप आगे पढ़ेंगे, ये ब्रेन का 3 पार्ट है। इस ब्रेन में मैं लिख ही देता हूं आपको, ये ब्रेन का 3 पार्ट होता है बच्चों। ये पार्ट होता है प्रोजेंसेफेलॉन,
जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये सामने वाले पार्ट को बोलते हैं, ये वाले पार्ट को प्रेजेंस प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रॉम्बेनसेफेलॉन। ये 3 पार्ट है, तीनों का पार्ट अलग अलग है। कभी आपको तकलीफ होती है तो आप रोते हो, कभी किसी लॉटरी मिल जाती है, कोई चीज आपको अच्छा रिजल्ट आ गया, खुशी से आप जो एक्साइटेड हो जाते हो। तो इसमें से प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन तीनों का वाइटल रोल है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो है, ये एक साथ जब कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये तीनों जब एक साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है तो आपको हैप्पी फीलिंग होती है। और तीनों में से कभी एक एब्सेंट हो जाता है, उस समय आपको खुशी भी होगी, अफसोस भी होगा। तो इसका ये न्यूरल कंट्रोल में, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से केमिकल बनेंगे, कौन सा न्यूरल सिस्टम किसके साथ, किस ऑर्गेन के साथ अटैच होकर के वो केमिकल फ्लूइड बनाएगा, जो दूसरे को सप्लाई करने के बाद वो थिंकिंग करते हैं। हम लोग अगर कोई कोई काम करने के पहले क्या करते हैं, थिंक बिफोर स्पीक, बोलने के पहले सोचिए, थिंक बिफोर वर्कआउट, काम करने के पहले सोचिए कैसे करना है। तो इसमें ये तीनों पार्ट का वाइटल रोल है। अब इसके बाद आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। बच्चों, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस का प्रोडक्शन होना। अगर केमिकल, अब कहते हैं कि इसका दिमाग बहुत तेज है। अब कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किसी एक चीज को पढ़ लेते थे, टिल लाइफ को नहीं भूलते थे, लेकिन हम लोग पढ़ते बार बार उसको याद करते हैं, जस्ट लाइक ए पैरोट। तो उसमें ब्रेन में जो केमिकल का जो फॉर्मेशन होता है, वो आपके लॉस और मेमोरी को इंडिकेट करता है। आप अपना आई को अब चेक कराइए, आज देखिए आपका डिफर आएगा, 1 साल के बाद चेक कराइए वो डिफर आएगा। क्यों? आदमी तो आप वही है, आपका ब्रेन भी वही, लेकिन केमिकल फ्लूइड का नहीं बनना या ज्यादा बनना या कम बनना, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम भूल गए। क्यों बोलते भाई? हमको याद है, कोई कहता है याद है, कोई भूल गया। इसका रीजन होता है केमिकल प्रोडक्शन नहीं होता है। केमिकल प्रोडक्शन होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। जब केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा, जब फंक्शन नहीं होगा तो उसका इंटीग्रेशन भी इम्पॉसिबल है। थैंक यू बच्चों, ये आपके सिलेबस का 11th का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे